کہہ رہے تھے کہ جو سب کے اوپر ہے اچھی بات ہے، خدا کا جو مقام ہے وہ تو سب سے بلند ہے، وہ سب سے عظیم ہے، لیکن سب کے اندر انہوں نے اینڈ والا جو جملہ بولا خدا سب کے اندر نہیں۔ کیسا ہے؟ خدا پاک ہے، اور جہاں خدا رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک۔ آمین۔ اور خدا جو پاک ہے، اس سے بیشتر روئے زمین کے اوپر ہم پیدا ہوتے خدا کے ارادے کے اندر، خدا کے منصوبے کے اندر، اس سے بہتر کبھی آسمان زمین بھی نہیں بنا تھا، لیکن میرا اور آپ کا تقرر خدا کے کلمے کے اندر ہو چکا ہے۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو بول رہے۔ افسیوں کے نام مقدس اصول کا لکھا گیا تھا، اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں آیت۔ مقدس اصول کے نام لکھا گیا افسیوں کا تھا، دوسرا باب 10ویں آیت، ایک ہی آیت۔ بیٹیوں میں سے گزارش ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ یسوع مسیح میں شکر گزار ہوں، یہاں پر کھڑے ہونا بڑی ہی شرف کی بات ہے، کیونکہ یہاں جو خادم ہمیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اس کے جیسا کہہ رہے تھے کہ جو سب کے اوپر ہے اچھی بات ہے، خدا کا جو مقام ہے وہ تو سب سے بلند ہے، وہ سب سے عظیم ہے، لیکن سب کے اندر انہوں نے اینڈ والا جو جملہ بولا خدا سب کے اندر نہیں۔ کیسا ہے؟ خدا پاک ہے، اور جہاں خدا رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک۔ آمین۔ اور خدا جو پاک ہے، اس سے بیشتر روئے زمین کے اوپر ہم پیدا ہوتے خدا کے ارادے کے اندر، خدا کے منصوبے کے اندر، اس سے بہتر کبھی آسمان زمین بھی نہیں بنا تھا، لیکن میرا اور آپ کا تقرر خدا کے کلمے کے اندر ہو چکا ہے۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو بول رہے۔ افسیوں کے نام مقدس اصول کا لکھا گیا تھا، اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں آیت۔ مقدس اصول کے نام لکھا گیا افسیوں کا تھا، دوسرا باب 10ویں آیت، ایک ہی آیت۔ بیٹیوں میں سے گزارش ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا
اسی کی کاراگری ہیں، ہم اسی کی اور مسیح یسوع نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ یسوع مسیح میں شکر گزار ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہونا بڑی ہی شرف کی بات ہے، کیونکہ یہاں جو خادم ہمیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اس کے جیسا سیالکوٹ کے اندر کوئی خادم ہے ہی کم۔ آمین۔ جس وفاداری کے ساتھ، جس تابعداری کے ساتھ خدا کا یہ خادم سیالکوٹ کے اندر خدمت کے لیے سرگرم ہے، اور جس سچائی کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ سچائی کو لے کر خدا کا خادم جو ہے، اور سب سے بڑی بات وہ ہنگر، وہ بھوک جو روحوں کو جیتنے کی اور روحوں کو پانے کی وہ تڑپ جو ہے، اس لیول کی تڑپ، اس لیول کی بھوک میں نے بہت ہی کم خدا کے اندر دیکھی ہے۔ آمین جی۔ لیکن کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہم اسی کی کاراگری ہیں۔ اور یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے کون سا نیک عمل؟ ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، یہ خدا کے ارادے کے عین مطابق کون سا عمل نیک عمل ہے، اور کس طرح کا عمل ہم کرنے سے خدا کی منشا کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ کون سا عمل نیک؟ ایسا عمل جس کے سبب سے آپ کا نام جو ہے وہ کتاب حیات کے اندر ہو۔ ایسا عمل کر گزرنا، ایسا عمل کرنا، ایسے عمل کے لیے ہمارا انتخاب ہونا جس کے سبب سے آپ کا نام جو ہے وہ عالم بالا پر لیا جائے۔ ہم اسی کی کاراگری ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا۔ آمین۔ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ کون سا ایسا عمل جس کے سبب سے، ایسا عمل، ایسا کردار، ایسا فریضہ، ایسا فرض، کون سا جس کے سبب سے ہم خدا کے ارادے کے اندر ہیں؟ لکھا ہے مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے نیک عمل۔ اگر ہمارے عمل سے اگر کوئی روح بچ جائے، آمین جی، لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ جب ایک روح زمین کو اوپر توبہ کرتے تو لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں کیا کرتے؟ خوشی مناتے ہیں۔ آمین جی۔ ایسا عمل جس کے سبب سے زمین کے اوپر بھی اور عالم بالا کے اوپر بھی جو ہے دیکھیے گا ذرا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل کو کامل کرا 17واں باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھی گا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل نہیں 17 چوتھی آیت پڑھی، چوتھی آیت بیٹھیو جلدی کے ساتھ پڑھی گا۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا، جو صبح سے کہہ رہا ہے، زمین کے اوپر جس طرح یسوع کا کام تھا، جس طرح یسوع کا کردار تھا، جس طرح یسوع اپنے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے زمین کے اوپر پیدا ہوا، زمین کے اوپر آیا، باپ نے ایک ارادے کے مطابق، ایک کردار کے مطابق
एक फर्ज देकर जमीन के ऊपर उसे भेजा था, ऐ बाप, एक बार फिर पढ़ी जो काम तूने मुझे करने को उसे मैं तमाम करेंगे। तेरा जलाल। आप जमीन के ऊपर हाथ साथी पैदा नहीं हुए, आपकी पैदाइश जमीन के ऊपर एक मकसद के तहत है। खुदा ने एक जिम्मेदारी आपको देकर भेजी है जमीन के ऊपर। बाइबल तो कहती है कि ना हो गोलियां कचरा, ये उन्होंने तो कुछ समझ नहीं, लेकिन इंसान और खासकर मसीही कौम, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक इरादा रखता है, खुदा आपकी जिंदगी के लिए एक मकसद रखता है। यीशु ने कहा जिस मकसद के तहत तूने मुझे भेजा था जमीन के ऊपर, उन्हें पूरा करके मैं तेरा जलाल। कभी अपनी जिंदगी देते कभी सोचे अपनी जिंदगी देते कि खुदा ने मनुष्य उम्मीद देते क्यों रखा, खुदा ने मनुष्य उम्मीद देते क्यों पैदा किया है। खुदा की जिंदगी के अंदर प्लानिंग रख चुका है, खुदा मकसद रखता है आपकी जिंदगी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बेमकसद हैं, पैदा हुए, जवान हुए, शादी की और फिर बड़ा पाया और फिर मर, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा आपकी जिंदगी के तल्लक से इससे बेहतर कि आप जमीन के ऊपर पैदा होते, आपकी पैदाइश से हजारों साल क्यों के अंदर दोबारा आएंगे देखेंगे। पहला बात, चौथी आयत, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। चुनाचा उसने हमको बनाया, अभी आलम ही नहीं बने थे, आसमान जमीन की कोई चीज उसने तहलीक नहीं की थी, लेकिन बाइबल कहती है चुनाचा उसने हमको बनाया आलम से पेशतर उसमें, किसमें, उसमें किसमें, ताकि हम उसके उसमें किसमें जी बनाया आलम से पेशतर उसमें किसमें जी भाई है कलमे में बनाए आलम से पेशतर कुछ भी नहीं था। दूसरी बात सुनिएगा जरा, खुदा कहाँ रहता था? खुदा के रहने के लिए तो कोई जगह होगी, जब आलम भी नहीं थे, ना आसमान था ना जमीन थी, खुदा कहाँ रहता था? अगर खुदा का रूप पानी की सतह पर जुम्बश, लेकिन खुदा के रहने की जगह उसका कलमा। खुदा कहाँ रहता था? अपने कलमे के अंदर, और कलमा जो है वो कहाँ पर है? मतकल्लम के अंदर। कलमा और मतकल्लम आमीन दोनों लिखा है कि उसने बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे अपने कलमे में, शायद उसके हजारों साल बाद हमारी पैदाइश हुई जमीन के ऊपर, लेकिन खुदा एंड को कहाँ से देखता है? आगाज से। खुदा कहाँ से एंड को कहाँ से देखता है? आगाज से। आमीन। कलमे के अंदर हमारा वजूद जो था, उसके कलमे के अंदर हमारा कलर हो चुका था, और जो कुछ हम जमीन के ऊपर करते करेंगे वो सब उसके कलमे की साथ के अंदर, उसके बनावट के अंदर लिखा जा चुका है। आमीन। क्यों? आज दुनिया जो है, हम उसी की कारागिरी हैं, और यीशु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। दूसरे थिमोथी में कहने जा रहा है, पहले बाप के नाम याद,
बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर असल से हुआ, जो मसीह यीशु में हम पर, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से और हमारे कामों के मुआफिक नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो यीशु मसीह में हम पर फजल से हुआ। हमें, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से, पाक बुलावे से, आपका बुलावा जो है वो खुदा के इरादे के अंदर। आमीन। जमीन के ऊपर लिखा उसी की कारागिरियां यीशु मसीह ने नेक अमाल के वास्ते क्या हुए, मखलूक हुए, नेक अमाल के वास्ते। कितने लोग हैं जो रात के पहरों के अंदर, आज दुनिया के अंदर हम बहुत सारे लोगों को निजात पाते हुए नहीं देख रहे। यही बात है ना, जिस दौर से मसीहत काम कर रही है, जिस दौर पर खुदा के खादम जो है वो काम कर रहे हैं, उसी दौर से आज से हजारों साल पहले मसीहत को दुनिया के ऊपर राज करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम खुदा के इरादे के मुताबिक हैं तो क्यों हमें जिस पर, जिस मकसद के तहत जमीन के ऊपर हमें रखा गया, जो मकसद खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर रखा है, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कभी अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जान पाते कि खुदा ने उन्हें क्यों रखा। वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी बसर करते हैं, दुनियावी जिंदगी के अंदर वो जदोजहद करते हैं दुनिया की तमाम तरह ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए। लेकिन कहना चाहता हूँ, अगर वो नहीं करते तो ये नहीं करते कि मैं अपनी रूह के लिए कुछ अच्छा कर दूँ, कुछ अच्छा। उन नेक अमाल के वास्ते बाइबल मुक़द्दस के अंदर आपने नेक सामरी की तमसील जो है वो सुनी हुई। की 30वीं आयत पढ़िएगा जरा इस तमसील से। एक सबक मैं आपके सामने आज सुबह रखना चाहता हूँ ताकि आप जाने कि हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद जो है, इस कॉलेज के अंदर आने का हकीकी मकसद जो है वो हकीकत के अंदर है। 30वीं यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। एक आदमी यरूशलेम से, यरूशलेम का मतलब क्या है? सलामती का घर। लेकिन ये शख्स क्या करता है, ये तैयार होता है और यरूशलेम जो सलामती का घर है उसे छोड़ता है और यरीहो की तरफ मूव करता है। यरीहो जो है ये बस्ती के नीचे है, लेकिन यरूशलेम का शहर जो है ये 3 पहाड़ों की चोटी पर तमीर किया गया है, बनाया है पहाड़ों के ऊपर। आप पहाड़ों से ऊपर से बुलंदी से बस्ती की तरफ जा रहा है। हुआ क्या इसके साथ? हम सीख रहे हैं आज कि हम उसी की कारागिरी, उसने हमें बनाया है, आमीन। लेकिन जिंदगी गुजारने का मकसद है, वो मकसद जब आप जाए तो बाप के बेटा तूने ज़मीन के ऊपर मेरे लिए बहुत काम किया, हाँ ये ताज है, ये पहले क्योंकि तू इसकी हकदार है, हकदार। क्या पत्र के डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। अब गौर के साथ मेरी तरफ देखिएगा जरा। काहिन जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? वो शख्स यरूशलेम को छोड़ता है। यरूशलेम को छोड़ने वाले जब यरूशलेम से बाहर आते हैं तो उनका इस्तकबाल करने वाला भाई साहब क्या कहते हैं, सिंगू वाला, वो खड़ा होता है। रहना चाहिए कहाँ चाहिए हमें?
स्टे कहाँ करना चाहिए? यरूशलेम के अंदर, वहाँ सलामती है। लेकिन अगर आप यरूशलेम को छोड़ेंगे, बाहर आएंगे तो बाहर आपका इस्तेमाल, इसका भी इस्तेमाल करने के लिए वो मजबूर था। उसने किया, लिखा डाकुओं में गिर गया, डाकुओं ने मारा, जख्मी हुआ, पड़ा रहा वहाँ पर। एक कहानी तो फातिमा उसी राह से गुजरता है। हम सीख रहे हैं, हम उसी की कारागरी है। यसू मसीह में उन्होंने नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, नेक अमाल के वास्ते क्या हुए? मखलूक हुए। काहन का काम क्या होता है? काहन आया, उसने देखा कि ये जख्मी पड़ा हुआ है और वो कतरा आता है। काहन पूरा साल खिदमत का काम सारा अंजाम देता है, खुदा की पूरी करता है। आमीन। लेकिन अमल देखिए जरा आप। अमाल के साथ आपका ईमान अप्रोच करता है। अगर आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो बाइबल कहते हैं कि तू ईमानदार है, ठीक है, लेकिन अमल तेरा। आज 80% मसीह कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उनका अमल अगर उनकी जिंदगी का करते थे तो अपने अमाल के हिसाब से वो लगते ही नहीं है कि ये मसीह है। कायम जो था, उसका काम था कि उसको उठाता और उसकी देखभाल करता, लेकिन कायम जो था उसने देखकर कतराकर चला गया। उतरेंगे बड़े उतरा। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। थोड़ा सा आगे भी कर दे। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर पटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानस्थ में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। पहले कहाँ आता है? कायम जख्मों को देखकर कि ये जख्मी है, मुझे तरद्दुद करना होगा, मुझे तकलीफ करनी होगी, लेकिन वो छोड़कर कायम जो था वो अपने सफर पर निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद लिखा है, एक लावी, ये भी खुदा के हैकल के अंदर खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। क्या इसका फर्ज नहीं था तो उस जख्मी को उठाता? लेकिन लावी भी आया, जख्मी को देखा और कतरा करके चला गया। एक और शख्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका? सामरी कौन थे? सामरी यहूदी जो थे, ये सामरियों के साथ किसी तरह का तल्लुक नहीं रखते। जिस तरह छूत छात की बीमारी हिंदुओं के अंदर थी ना, इसी तरह यहूदी भी इन्हें मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि नीचे वाली जात का जाना जाता था। क्या सामरिया? सामरी ने देखा कि एक शख्स जख्मी है, उसने लिखा है कि उसके जख्मों को साफ किया और फिर उसने उसे उठाया और ले गया कहाँ से? सराय के अंदर। इन तीनों करदारों के अंदर कलीसिया कहाँ पर? क्या पहला करदार काहन का कलीसिया आपको यहाँ पर नजर आती है? दूसरा करदार लावी का आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? लावी की शक्ल के अंदर, या फिर तीसरा करदार नेक सामरी का जो आया
کے زخموں کو صاف کیا، اسے اٹھایا، سرا کے اندر لے گیا اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ خبر کی کلیسیا جو ہے زمین کے اوپر مسیح یسوع کے جلال کی علمدار ہے، اور اگر کلیسیا جو ہے زمین کے اوپر برداری کی حالت کے اندر آ جائے، اپنے مقصد کو جان لے، کلیسیا جو ہے زمین کے اوپر، تو ابلیس کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا زمین پر۔ نیک سامری جو ہے کس کا کردار؟ آپ دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ، آپ کو یسوع مسیح نظر آئیں گے نیک سامری کی صورت کے اندر۔ آج ہمارے بہت سارے گھرانے، بہت سارے مسیح خاندان گھرانے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ابلیس کے ہاتھوں کے اندر، مار کھا رہے ہیں ابلیس سے۔ لیکن کتنے ایماندار آج ہیں جو ان کے لیے رات کے پہروں کے اندر اٹھتے ہیں۔ مقدس روح سے سن کہتا ہے بچوں، مجھے تمہاری طرف سے پھر چلنے کے سر درد لگے ہیں، جب تک مسیح تمہوں میں صورت، جب تک مسیح نظر نہیں آتا تواڈے کردار دے اندر، تواڈے عمل دے اندر، تواڈے ایمان دے اندر، جب تک مجھے یسوع نظر نہیں آ رہا یا آ نہیں جاتا، تب تک ایک درد جو ہے وہ اسے لگا ہوا ہے۔ کیا یہ درد آج کلیسیا پر؟ ہمارے آس پاس، ہمارے اپنے گھرانے کے اندر بے شمار زندگیاں آپ جائزہ لیں، آپ کو نظر آئیں گی یسوع مسیح سے دور، لیکن ہم کتنا رات کے پہروں کے اندر ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ باپ اپنی قدرت کو میرے بھائی میری بہن کی زندگی کے اندر ظاہر کر۔ نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے خدا کے عین ارادے کے مطابق، لیکن وہ نیک عمل آج ہے کہاں؟ کلیسیا کے اندر۔ اگر آپ عمل کہتے ہیں تو عمل کے ساتھ ایمان جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ہمارے 11 ٹیچر ہیں ہمارے اسکول کے اندر، ایک ٹیچر ہوں میں اپنے علاقے کے اندر، لیکن 11 میں سے 10 بولنے کی جھوٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے مان کو اپروچ کرتا ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کو فرض کریں، بھائی ولیم رات کے 2:30-3 بجے میرے پاس آتے ہیں، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے، میں بھوکا ہوں پچھلے دنوں سے، مجھے روٹی کی ضرورت ہے۔ میں کہوں ٹھیک ہے بھائی خدا کے جناب، جب میں دعا چھوٹی جی دعا کر کے بھائی ولیم کو کال کر دوں کہ میرا عمل ہے بائبل دی ہے مطابق جو چیزاں بھائی ولیم کو درکار نہیں، اگر میں انہوں روٹی نہیں دیتا، صرف کہہ چھڑنا کہ ٹھیک ہے بھائی ولیم جا خریدنا، جا کے سو جا بھی مل جائے گی روٹی۔ میرے پاس خدا کے اندر سب کچھ ہے، کام پر آ جاؤں کھڑے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ نیک سامری نے وہ کیا جو دونوں کو کرنا چاہیے تھا، کاہن کو بھی اور پھر لاوی کو بھی، لیکن جو لاوی نے نہیں کیا، جو کاہن نے نہیں کیا، وہ نیک سامری نے کیا۔ آج کلیسیا، پھر میں کہنا چاہتا ہوں، کلیسیا زمین کے اوپر یسوع نے کہا باپ جو کام تو نے مجھے دیا تھا، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی تھی، اس کو میں نے کر کے پورا کر کے تیرا جلال زمین کے اوپر ظاہر کیا۔ آج کلیسیا جو حقیقی طور پر مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہے، وہ کیوں عمل نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں مسیح کا جلال کو کیوں ظاہر نہیں کر رہے؟ آپ کے سبب سے کلیسیا کی کاہلی اور کلیسیا کی سستی کے سبب سے کلیسیا سوچ کیا رہی ہے؟ مقدس موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے کنعان کے اندر، دریافت کرو کہ کنعان کی صورتحال ہے کیا، وہاں کا پتہ کرو کہ لوگ کیسے ہیں،
جب وہ 12 جاسوس کے واپس آئے 10 نے وہ رپورٹ دی جو انہیں دینی نہیں چاہیے، نیگیٹو رپورٹ دی، کہنے لگے وہ لوگ تو جبار ہیں، ان کے قاتل تو بڑے بڑے ہیں، وہاں کا پھل بڑا بڑا پھل، سیدھے اپنی نگاہ کے اندر چکی اینٹی ہونا بھی حالانکہ جس قدر موسیٰ کی رہنمائی کے اندر وہ خدا کے معجزات کو دیکھ چکے تھے، ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 10 جاسوس نے وہ رپورٹ پیش کی جو بے ایمانی کی روح ان 10 جاسوسوں کو پر غالب آ چکی تھی، لیکن 2 تھے جنہوں نے مثبت رپورٹ کی پیش کی اور خدا کے کلام کے مطابق بولے نہیں خدا ہمارے ساتھ، اور حملہ کریں ہم یقیناً فتح حاصل کریں گے۔ 10 جاسوس اسی رات کے اندر مار دیے۔ آج بے ایمانی کی روح جو روح کا سرطان ہے اس نے کلیسیا کو مفلوج کیا۔ کہاں لکھا اسی کی کاراگری ہے، اور یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جس کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے کیا کیا تیار نکالے۔ ذرا یعقوب کا خط دوسرا باب، دوسرے باب کی 14ویں آیت سے پڑھی گا۔ اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ آگے سوال یا نشان ہے، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا؟ فائدہ؟ آگے سوال یا نشان ہے کہ ایسا ایمان اسے نجات، ایسا ایمان اسے نجات، ہماری نجات کا تعلق صاحب نے اس دن چھوڑ دیا تھا، کہہ رہے تھے کہ 3 قسم کی نجات ہے، پھر کسی دن پوچھیں گی ان سے ہماری نجات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مشرہ بھائی ابھی جو آیت پڑھی اس سے اوپر والی آیت ہے، اس کے نام دوسرا 2:10 کو ہم نے پڑھا، اس سے اوپر والی آیت کے اندر ہماری نجات کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، آمین۔ اور اگر ایمان ہے تو عمل پھر ہمارا عمل بھی تو ہماری نجات کو اپروچ کرے گا نا، کہ خالی صرف ہم ایمان رکھیں۔ ایک تمثیل کے تو میں بیٹھ جو گجرات والی تاریخ تو میں کون کروں، مجھے لاہور جانا ہے تو میرا ایمان ہے کہ میں لاہور جاؤں گا، لیکن میرا عمل کیا ہے؟ یہاں سے میں گاڑی دوں گا لاہور والی، تب میں لاہور جاؤں گا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے مقدس یعقوب کے خط کے اندر کہ اگر کوئی کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو کیا لکھا ہے؟ ننگی لکھا ہے، اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی اسے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم و سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ کہ پھر سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال تو اپنی ذات سے کیا ہے؟ ایمان اپنی ذات سے کیا ہے؟ اگر عمل نہ عمل کیا نہ مان رکھا، کاہن اور قضا، لیکن نیک سامنے رات کے پہلو کے اندر اگر ہم جا کر خدمت نہیں کر سکتے تو رات کے پہلو کے اندر گھر کے اندر تو بیٹھ سکتے ہیں، تو
टारगेट करके देख। एक हफ्ता उस भाई को, उस बहन को जो शायद निजात से खाली है, निजात से खाली है, जो शायद यीशु मसीह पर ईमान भी ना रखता हो, सिर्फ नाम का मसीही हो, उसे टारगेट करके देख। नाम लिखे उसका, डायरी के अंदर लिखे, दीवार के ऊपर लिख देना उसका, और जब भी आपकी नज़र उस नाम के ऊपर पड़े, खुदा से कहे, पाक से कहे, पाक इस शख्स को मैं तेरी हुजूरी के अंदर देखना चाहूँगा। जितने बंधन इसकी जिंदगी के अंदर हैं उन्हें करो। देखिए ये ऐनक मेरे कंट्रोल के अंदर है। फर्ज करिए एक रूह है और पुलिस का हाथ है, कैसे थोड़ी निकलना, पहले ये टूटेगा, फिर आस्ता आस्ता हम दुआ करते रहेंगे। अगर एक हफ्ता दवा की छोड़ दी तो ये बंदरों के अंदर ही बदा रहेगा। तब तक आपको दुआ करना है, तब तक जब तक ये शख्स आजाद नहीं हो। अब वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। आप सिर्फ चंद ही हफ्ते दुआ करेंगे, पाक शख्स को आप के सामने ला और यकीनन वो यीशु मसीह को कबूल करके अबदी जिंदगी का वारिस होगा। तब तक आपको लड़ना है, तब तक आपको खुद जीतना है, तब तक दुआ करते जाना है जब तक आप जीत नहीं जाते। लेकिन है खुदा के कलाम के दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते, मगर नाम तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। जीतने के लिए लोगों को ये दौड़ रूहानी दौड़ है, दुनियावी दौड़ के लिए तो हम सब कुछ दौड़ भाग दौड़ करते हैं, लेकिन रूहों को बचाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चर्च के ऊपर, होशिया के ऊपर है। अब देखिए अपने इर्द गिर्द देखने के यीशु मौजूद है आपकी हालत के लिए, पाक मौजूद है हमारी मदद के लिए, लेकिन हमें करना क्या है? अपने ईमान के साथ लिखा है हम उसी की कारागिरी हैं, और यीशु मसीह में उन नेक अमाल के बाद क्या हुए मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए एक सामने की तमसील देते हुए खुदा ने कहा जाओ तुम भी ऐसा ही करने का वक्त है, कर गुजरने का वक्त है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी मुस्लिमों के लिए, और सिर्फ मुस्लिमों के लिए तो कंजूसी होने लगी। अगर हम मुस्लिमों के लिए करेंगे तो ये रियाकारी होगी, और अगर हम मुस्लिम के लिए करते हैं तो वो भी इसको कबूल करें, तो ये रास्ता है। हम उसी की बड़ा खूबसूरत बनाया। कलीसिया ज़मीन के ऊपर जिस कदर खूबसूरत है, इसी यीशु का कदम होते थे हमें भी, लेकिन काम कलीसिया और अगर आपको ज़िंदगी गुजारने का मकसद नहीं मिला, मुझे दिया। जब मैं इतना था, मैं ख्वाब देखा करता था कि मैं दुश्मन नीचे से गोली चला रहा है, मैं आसमान के अंदर। मैंने देखा कि मैं चप्पड़ देखी जो मछलियों पर के बाहर सकता हूँ। मैंने देखा कि मैं पहाड़ों के अंदर, नदियों के अंदर जाता हूँ, वहाँ से चमकीले कलर की मछलियों पकड़ते। मैंने देखा कि जब मैं चप्पड़ के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता हूँ, वहाँ मैंने बहुत दफ़ा सांप मारा। मुझे खुदा ने लोया के साथ खिदमत के लिए कॉल किया है, और मेरे घराने में से जहाँ मैं सिर्फ शराब पिया करते थे, शराबी के नाम से हमारा ख़ानदान हरवाला की तरफ जाना जाता था, और लोग कहने नहीं कि हर जो अच्छी चीज़ निकल सकती थी इस घराने। खुदा ने कहाँ से मुझे दिया। कितने मौके मेरे पास बिना करने को होते थे कि 4-4, 5-5, 6-6 मौके
खुशियाँ, यीशु के पाक बदन का हिस्सा। आमीन। अपना हक अदा करते हैं। जो जिम्मेदारी मेरे यीशु ने आपको दी है, उस जिम्मेदारी को कबूल कीजिएगा और उस जिम्मेदारी को पूरा करिएगा। आपकी कोशिशों की इस वक्त से बथेरे मेरे यीशु को कबूल करेंगे और जीवन में मुसाफिर होंगे। अगर हम सिर्फ सुस्ती उतारी करेंगे तो ये दिन उन पर सदा क्या करता है। मेरे यीशु ने बहुत बड़ी कीमत दी है, इतना जो उस कीमत का हक अदा करने का वक्त आ जाता है। इस कलाम के सबब से खुदा आपको बरकत दे। आप अपने मकसद को जानें और अपने मकसद पर अपनी गिरफ्त मजबूत करें और अपने मकसद को पूरा करने के आइए। इस आयत के साथ मैं याद करूँगा कि दौड़ने वाले तो सभी तुम ऐसे ही दौड़ो आगे। कल हम देख रहे थे कि जमीन के ऊपर खुदा हर शख्स की जिंदगी के अंदर मकसद जो है वो रखता है। चाहे हम अपनी जिंदगी के अंदर उस मकसद को जाने या ना जाने, उस मकसद के तहत हम अपनी जिंदगी बसर करें या ना करें, लेकिन ईमानदार जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका वक़्त जो है ज़मीन के ऊपर वो खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक गुजरे। आमीन। और अगर हम ईमानदार होते हुए हमें अपने मकसद का पता ही नहीं है। मैंने बिली ग्राम की किताब पढ़ रहा था। बिली ग्राम ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि 97% लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने के मकसद का पता ही नहीं। 97%। सिर्फ 3% लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आपका मकसद है जिस दौर से अब हमारा गुजर हो रहा है, जिस वक्त से अब हम गुजर रहे हैं, एक अफरा तफरी का आलम है। हर शख्स चाहे वो ईमानदार है या बेईमान है, एक चीज जो है मैंने मुशाहदा किया है कि वो बड़ी तेजी से अजीब तरह की कश्मकश के अंदर गिरफ्तार हैं और चाहते हैं कि हम माली तौर पर लोग हमें जाने, हमारी इज्जत हो माशरे के अंदर। जब हम घर से निकले तो लोग हमें
बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ। मैंने कल भी बाजी को कहा था कि बाजी मेरे लिए तालियां होगा। जो चीज मेरे यीशु के लिए है, अगर वो चीज मैं लेकर चला जाऊंगा तो फिर मेरा यीशु जो है सारी इज्जत और सारी अजमत और सारी बुजुर्गी और सारी हशमत का मालिक जो है वो यीशु है। आमीन। जो खुद नुमाई होती है, ना तो मैंने भाई सबर की जिंदगी के अंदर, खुदा के खादिम की जिंदगी के अंदर इस चीज को देखा। हम मई के महीने से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा उनके साथ कमिटमेंट नहीं, खुदा के साथ है। इस चीज को हमने कभी नहीं देखा कि हमने हमेशा एक तमन्ना की है कि अगर हम खुदा के लिए खड़े हैं तो सारा जलाल भी यीशु को मिलना चाहिए। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को बोलेगा। इसलिए नबी का हिफाज का 22वां बाब 30 तक 31,000। इसलिए नबी का हिफाज पुराने अहदनामा में से 30 और 31 दो याद पढ़िएगा जी भाई। सुनो। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसीह बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है। यहाँ तक आशाम खुदावंद के कलाम का बड़ा जमा सुना जाना यहाँ पर मौजूद एक जिंदगी के लिए खुदा का ये कलाम बरकत का वास्ता मालूम करके आमीन। लिखा मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी, खुदा करे मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले। दो तरह की दवा जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। एक हुक्म देने वाली दवा है और दूसरी दवाएं जो है वो शफायती दवा, इंटरसेसर प्रेयर। जो शफायती दवा है, खुदा इस दवा को बहुत पसंद करता है। खुदा ऐसे लोगों को रुए जमीन के ऊपर बहुत पसंद करता है। एक वकील की तरह खुदा के सामने खड़ा होना, एक वकील अदालत के अंदर जज साहब के सामने अपने क्लाइंट के लिए दलाइल के साथ जरा करता है, और जमीन के ऊपर खुदा के सामने इब्लीस जो है वो तुला हुआ है जहन्नम को फिल करने से। 97% लोग जो हैं वो बगैर मकसद की जिंदगी बसर करते हैं। उनको 3% 97% अगर जमीन के ऊपर उन 97% लोगों के लिए कोई दुआ नहीं कर रहा, कोई शिफायत नहीं कर रहा, तो मुझे बताइएगा मैं कैसे। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ तो अपनों के लिए सांस जो है वो शायद मर चुका है, गैरों के लिए सांस कहाँ से रहेगा। लेकिन खुदा पसंद करता है, वो जमीन के ऊपर ऐसे लोगों को खुदा चाहता है। लिखा मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उससे वीरान पर
بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ خدا یہ بیان کرتے ہوئے بائبل یہ ہمیں بتا رہی ہے کوئی نہیں ملے رکھنے دے وچ کھڑا ہونا گا. کلیسیا عروہ زمین کے اوپر اس بات کی ذمہ دار ہے. ہم کل بھی بات کر رہے تھے کلیسیا جو ہے وہ اس بات کی جو ہے خدا نے ذمہ داری دیتا ہے. رکھنا میں کھڑا ہونا ہر کسی کا کام نہیں ہے. جب تک آپ کے دل کے اندر ساز نہ ہو، احساس ذمہ داری نہ ہو، اگر آپ کے دل کے اندر درد ہی نہیں ہے. وکیل جرا کرتا ہے اور اپنے کلائنٹ کو چھڑاتا ہے، جج سب کے سامنے حقائق دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے یہ بے گناہ ہے، لہذا آپ اسے عدالت سے بری. آج کلیسیا کون رکھنے کے اندر کھڑا ہوگا اگر کلیسیا گناہ گاروں کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی؟ کون باپ کے سامنے کلیسیا کی شفاعت کرے گا؟ یسوع شفاعت کیا کرتا تھا یا نہیں؟ ساری رات پہاڑ کے اوپر جاتا ہے، وہ بہت سارا وقت اور صلیب کے اوپر بھی وہ جا کر یہی کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتا. اگر ہم یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی لوگیں ملیں گی جو گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. کون ذمہ داری لے گا؟ بائبل کہتی ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ روح قدس تو زمین کے اوپر ایسی روحوں کی تلاش کے اندر ہے جو رات کے پیروں میں گرنا ہے، خدا کی حضوری کے اندر چلائیں. آج بے حسی کلیسیا کے اندر درد کرنا نہ ہونا. ماں ایک بچے کو درد کے ساتھ جلتی ہے، پیدا کرتی ہے، ماں جانتی ہے اس درد سے. آج وہ درد آج آپ یہاں پر ہیں، کل آپ نے خدمت کرنی ہے. کلوں کے اندر دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو کور نہیں کریں گے، اگر ہم کلیسیا کے اندر خدام جو ہیں یا شفاعت کرنے والے جو ہیں، میں نے سیالکوٹ کے اندر بہت کم لوگوں کو شفاعت کرتے ہوئے کلیسیا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں بہت کم میں نے شفاعت کرتے ہوئے بہت کم روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جو حقیقی درد کے ساتھ رات کے وقت خدا کے ضرورت رہتے ہیں، باپ معاف کر دیں. لیکن میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اس سے ویران نہ کروں. پر کوئی نہ. خروج کو نکالی میرے ساتھ، خروج 32 آیت اور ذرا پڑھیے گا. ایک شفاعت کرنے والا آپ کو یہاں پر ملے گا. اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا.
अब तो मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से, जिसने मेरा गुनाह मूसा गुनाह करके बनी इस्राएल लेकिन मूसा वहां पर एक शफायत कनिंदा के तौर पर खुदा बर्बाद करना चाहता था बनी इस्राएल को। मूसा सामने आ खड़ा हुआ, कहने लगा पहले मेरा नाम किताब हयात में से काट, फिर मेरे लोगों का। कहाँ है मूसा जैसे शफायत कनिंदा? कहाँ है मूसा जैसी रूह रखने वाली? यकीन कीजिएगा आज चर्चिस के अंदर खदान आ रही हैं इस दर्द से, इस सांस से। रूहें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं, लेकिन खदाम को एहसास तक नहीं। मूसा अपनी कौम के लिए खुदा के सामने खड़ा हो गया कि पहले मुझे मिटाओ, फिर मेरी कौम तक पहुंचना। और मूसा की शफायत से अगर मूसा खड़ा हो सकता है तो आज हम जो कलीसिया हैं जमीन के ऊपर, हम अपने लोगों के लिए खड़े तो नहीं हो सकते। कहाँ है वो सांस? कहाँ है वो दर्द? अगर दर्द ही अंदर ना हो, अगर सांस ही अंदर नहीं होगा, कैसे बचाएंगे? आपका बैठना रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर शफायत। और लिखा है मुद्रिस के खत के अंदर लिखा है कि खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत, जो सब निजात। ये खुदा की दिल की लालसा है कि सब निजात पाएं। हर एक के लिए वहां पर लिखा हुआ है कि शफायत करने के लिए, दुआ करने के लिए कहा हुआ है। क्यों आज हमें वो दर्द नजर नहीं आ रहा? दुनिया बर्बाद हो रही है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। कौन खड़ा होगा उनके पीछे? आज अगर कलीसिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो फिर मसीही नौजवान कसरत के साथ बैठ जहन्नम को फिल करने के लिए। लुका 22 बात के अंदर है लिखा है कि ऐ शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह। आम लोग थे ये लोग जिन्हें शैतान ने मांगा था, ये खास लोग थे। लेकिन क्यों, किस वजह से? खुदा की अदालत करके जाकर कहने लगा कि इन लोगों की जिंदगी के अंदर जेड़ा गुनाह मेरे अंदर पाया जाता है, वो गुनाह दे तेरे शिकंजा के अंदर है। लिहाजा है मेरे लोग भी इन्हों मेरे वाले कर के लिए यीशु ने कहा है, क्या शमौन मैंने तेरे लिए दुआ की, शफायत कर रहा है। ये याद रखिएगा, जमीन के ऊपर अगर किसी गुनाहगार की आप शफायत करते हैं, अगर अबलीस उस गुनाहगार का मुकदमा लेकर खुदा की हुजूरी के अंदर चला जाता है, तो खुदा जमीन को ऊपर देखता है कि इसके लिए कोई शफायत करीदा है। मेरे बच्चों में से कोई इसके पीछे खड़ा है जो शफायत कर रहा है। आपकी चंद मिनटों की शफायत से जिंदगियां बच सकती हैं। मुकद्दस रसूल कहता है, गलतियों को निकालिएगा जरा, चौथे बाब की 19वीं आयत से। ऐ मेरे बच्चों,
तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से तुम्हारी तरफ से एक रसूल कह रहा है, इसे रसूल आजम का खिताब बाइबल देती है, मुकद्दसिन इसी नाम से पुकारते हैं कि ऐ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक मसीह तुम में सूरत वो दर्द के साथ अपने लोगों के लिए दवा की हालत के अंदर है। एक जिम्मेदारी जो है वो निभा रहा है अपने लोगों के लिए। तो मुझे तुम्हारी तरफ से फिर जनने के से दर्द लगे, जब तक मसीह तुम में, जब तक तुम्हारे किरदार के अंदर, सोचों के अंदर, रवैयों के अंदर, अमाल के अंदर यसू नजर ना आए। वो दुआ कर रहा अपने लोगों के लिए, शफायत कर रहा अपने लोगों के लिए। खुदा इस दवा को और शफायत करने वालों को पसंद करता है। लेकिन शायद आज कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जिन्हें दूसरे रूहों का एहसास हो, जिन्हें दूसरे लोगों के लिए यह एहसास हो कि रूहें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। कहना यह चाहता हूँ, अपनी खिदमत को पहचानिएगा। अगर कलीसिया मुद्फी को जमीन के ऊपर और सरनगुम लिखा लिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से 3.5 साल तक उसने आसमान को बंद कर दिया। रास्तबाज की दवा के सबब से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रास्तबाज की दवा से शहर जो है वो सरफराज होते हैं। हम कहाँ पर खड़े? क्यों दर्द नहीं अपनी कौम के लिए? क्यों एहसास तक नहीं है? अगर यही हालत रही तो जो वक्त गुजरता चला जाएगा, हमारे पास वक्त नहीं है। इन्हीं 3-4 सालों के अंदर दुनिया का खात्मा जो है वो हो गया। तैयारी का वक्त कितना हमारे पास? कौन खड़ा होगा और उनकी जगह के ऊपर? कौन रखने में खड़ा होगा? शिकायत कर रहा है कि मैं चाहता था कि रखने में खड़ा हो, उस सरजमीन के लिए फसील बनाए, उसके रखने में खड़े हो, लेकिन कोई ना होगा। अगर बाप अपनी कुदरत को जाहिर ना करता, अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए ना भेजता, अगर यीशु दरमियानी का किरदार अदा ना करता, आज हम यीशु के पैरोकार हैं और यीशु की पैरवी। लिखा है दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में बल्कि जिंदगी का। हम पैरोकार हैं यीशु के, पैरवी करते हुए जिस तौर से यीशु ने जमीन के ऊपर जिंदगी बसर की जिंदगी, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसी दर्द के साथ एक दर्द उसकी रूह के अंदर था और वो दर्द उसे लेकर जमीन के ऊपर आ गया। जरा देखिए अपनी खिदमत, आपकी शफायत के सबब से, आपकी दवा के सबब से अगर एक मूसा फरियाद कर रहा था, खुदा ने कहा क्यों फरियाद कर रहा है? तेरे हाथ के अंदर है अपने आशा को। उसने बहरे गुलजुल के ऊपर अपने आशा को बढ़ाया और बहरे गुलजुल। फरियाद करने का वक्त और होता है, लेकिन शफायत
जिस दौर से अब हम गुजर रहे हैं, कहना ये चाहता हूँ, खुदा अपनी जिंदगी पर अगर एक चर्च जो है वो एक चर्च की कलीसिया जो है वो इस समूह हो अपने अपने एरिया के अंदर, तो यकीन कीजिएगा कि इब्लीस का काम जो है वो रोए जमीन के ऊपर तमाम हो। खुदा शफायती लोगों की तलाश के अंदर है। उन लोगों को तलाश कर रहा है जो रखना के अंदर खड़े, अपनी जिम्मेदारी जी की जिम्मेदारी को कबूल करें। हम उसी की कारीगरी और यीशु मसीह में हमने नेक अमाल के वास्ते क्या हुए हैं, मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है, उसने कुछ जिम्मेदारी आपके सुपुर्द लगाई है। हम जाकर करना नहीं चाहते तो कम से कम घर के अंदर बैठ कर ही दूसरे गुनाहगार लोगों के लिए ऐसे हैं। जो मकसद यीशु का था वही मकसद हमारा, इब्ने आदम का मकसद था। लूका 19:10 के अंदर लिखा है कि इब्ने आदम इसलिए आया ताकि ढूंढे और नजात, वही मकसद हमारा है। आज वही गोल जो यीशु का काल था, आज वही गोल हमारा है। जो मंजिल यीशु की थी, जो काम यीशु का था, आज वही काम जमीन के ऊपर यीशु के बदन का है, कलीसिया का है। और कलीसिया रोए जमीन के ऊपर यीशु के जलाल की अलमदार है। लेकिन अगर कलीसिया ही सुस्ती की हालत के अंदर होगी, अगर कलीसिया ही अपनी जिगी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगी, तो फिर करना इस तरह हम बहुत सारे लोगों को निजात पाते हुए देखेंगे। कैसे देखेंगे कि लोग निजात याफ्ता या निजात के अंदर चौकदार जोक शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सुस्ती और काली का मुजाहरा किया। लेकिन आज नहीं तो कल खुदा के सामने आप जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा। जो मकसद निजात के अंदर है, कल मैं एक आयत जो था वो बोल रहा था दूसरे तीमुथियुस में से, पहले बात की नाम ही आयत हूँ, कि जिसने हमें निजात दी और पाक बलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से, जिसने हमें नजात दी और अपने पाक बुलावे से, बुलावे के अंदर नजात के अंदर आपका बुलावा भी शामिल। जिस तरह खुदा ने मुझे बुलाया है, नजात के अंदर खुदा ने हर एक मसीही के लिए बुलाहट को रखा है। शर्त यह है मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरे करूं। अगर मुझे एहसास नहीं है कि बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो मसीह से दूर हैं और हम ईमानदार होते हुए उन जिंदगियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारा नाम जो है वो किताब हयात के अंदर लिखा हुआ हो। आज इस शफाअत की दुआ की हमारी कौम को जरूरत है। और जब पाकरू के साथ मिलकर शफाअत करेंगे तो लिखा है कि वो ऐसी आहट भर भर कर शफाअत करता है कि रूहों को परखने वाला जानता है। आमीन। रूहों को परखने वाला ये कागज है और इस कागज के अंदर आप तालीम हासिल करें ताकि कल जब आप जान से निकलें खुदा के कलाम की खिदमत करें तो ये वाली खिदमत जो है
शफायती खिदमत, शफायत करना ये बहुत बड़ी खिदमत है। यीशु मसीह इस खिदमत को किया, मूसा इस खिदमत को, मुकद्दस इस खिदमत के अंदर, और आज मैं आ रहा हमारे पास अपनी कौम के लिए और दूसरे के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह जाए, लेकिन काम अभी बहुत ज्यादा है। हमें उन रूहों तक पहुंचना है जो यीशु मसीह से ना आशना। हमारी एक मंजिल है। मुकद्दस रसूल कहते हैं, मैं माजी को भूलकर आगे की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ। माजी शायद हमारा कैसा ही तो ना हो, शायद माजी हमारा कहता हो कि हम गुनाहगार हैं, शायद माजी हमारे लिए रुकावट पैदा कर रहा हो, लेकिन मुकद्दस माजी को भूल कर आगे की तरफ, निशान की तरफ बढ़ा हुआ। मकसद रखे अपनी जिंदगी के अंदर कि हमने, मैंने देखा खुदा के खादिम की जिंदगी के अंदर कि वो मकासद रखते हैं, लिखते हैं, और शायद उसने बहुत सारे मकासद लिखकर आप लोगों के हवाले किए हो, लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो आज है जमीन के ऊपर, वो है शफायत करना, और शफायत के सबब से रूहों को बचाना। कहना ये चाहता रूहें बचेंगी तब अगर अंदर एहसास होगा, बेहिस होकर और बगैर दर्द के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम जिम्मेदारी कबूल करेंगे, शफायती दवा के अंदर आएंगे और अपने चेंज का रुख जो है वो शफायती दवा की तरफ मोड़ेंगे, तो यकीन कीजिएगा जब शफायती ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे तो आप बहुत सारे लोगों को अपने चर्च के अंदर निजात पाते हुए देखेंगे। मैंने देखा पहले वक्त की निस्बत ये वाला दौर जो है, आप सिर्फ एक हफ्ता शफायत करेंगे, आप उस रूह को अपने साथ लेकर जाते हैं। सॉरी, मैंने इसका तजर्बा अपनी जिंदगी का अंदर किया। आप रूह को टारगेट करें, नहीं उसको खुदा के हाथों में, वो तब तक शफायत करते जाए जब तक आपको नतीजा नहीं मिल जाता, जब तक आप देखते नहीं कि जिस शख्स के लिए आप शफायत कर रहे हैं वो खुदावन की गुर्बत के अंदर आ चुका है, वो खुदावन की नज़दीकी को हासिल कर चुका है। लेकिन ये बहुत जल्द होगा इन दिनों के अंदर। आप दुआ करेंगे, शफायत करेंगे, तो आप नतीजे को अपनी जिंदगी के अंदर अपनी हैसियत को देखे जरा खुदा के कलाम के तनाज़ुर के अंदर। आपकी शफायत के सबब से रूहें जो है वो बचेगी, घराने बचेंगे, नौजवान बेटे बेटियां, और इन दिनों के अंदर वो बच्चे वो बेटियां जो घर से बाहर निकलकर उनके लिए हमें उन्हें अपनी दुआओं के अंदर कब्र करने की जरूरत है, उनके लिए शफायत करने की जरूरत है। उनके लिए जो गुनाहगार हैं, क्यों हमें एहसास तक नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिसने हमें नजात दी और पाक बलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह ने हम पर अज़ल से हुआ, निजात याफ्ता होते हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे बहन भाइयों को भी नजात पाते हुए उसकी
को शफायत करना नहीं बोला, फिर भी वो दुआ करना नहीं बोला। अब आपने माफ़ करके उनके ये नहीं डालते, लेकिन आज शायद हम मसीह के पैरोकार होते हुए, आज हम क्रिश्चियन होते हुए शायद उस रूह से खाली कहना चाहता हूँ, आइए अपने आप को क्या करें, रात के पहरों या दिन के पहरों, रात के वक्त 1 घंटा की गई गवाह दिन के 10 घंटों से रात के पहर में अपने मोहल्ले के अंदर देखें उन लोगों को जो गैर निजात याफ्ता है, उन्हें देखें, जो गुनाहगार हैं उन्हें देखें, जो नशे हैं उन्हें टारगेट करें। ये जिम्मेदारी जो है कलीसिया को सौंपी गई। आमीन। कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे लोगों के लिए जो है वो करें। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो रात के पहरों में उठे और खुदा यीशु मसीह की हुजूरी के अंदर आए, ताकि हम बहुत सारी जिंदगियों को निजात पाते हुए और मसीह की कुर्बत के अंदर आते हुए देख पाए। मैं एक बार इस आयत को पढ़ने लगा, लूका 22 बात की 31वीं आयत से। शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पुराने वक्त से मानिया छाजे दे विच दाने पा के छट्टी होंगे ना, ते जेड़े अच्छे दाने सन पीछे ते जेड़ी दूसरी सी होई आ जाती सी। कलीसिया को यही कर रहा है। ये आम लोग नहीं थे जिनको मांगा, या खास थे, लेकिन वजह क्या थी? जो मैं बात पहले कर रहा था कि शहीद जो थी इनकी जिंदगी के अंदर यसु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। इस बात का जवाब यहाँ पर आकर खत्म हुआ कि हम में से बड़ा, यसु कुछ पूछ रहा है शिगिर्दों से, शिगिर्द जवाब कुछ दे रहे हैं, कहते हम में से बड़ा, और बड़ा होने का गुनाह कहाँ पर हुआ था? ये पहला गुनाह था, कहाँ पर हुआ? आसमानों के ऊपर ये पहला गुनाह था जो हुआ, बड़ा होने का गुनाह। शैतान ने मांग लिया कि मेरी तरह का गुनाह इनकी जिंदगी के अंदर, लिहाजा तू मुझे दे। जब वो से सुनेगा, आखिरी चंद बातें हैं वो बढ़िया। जमीन के ऊपर अगर आप किसी की शफायत नहीं करते तो खुदा अपने अदल जो है वो ज़ाहिर करता है, और होता क्या है, खुदा उस रूह को पुलिस का हाथ में दे देता है। और पुलिस पता क्या करता है? अपनी मनमानी करता है, अपने लिए उसे इस्तेमाल करता है, कसरत के साथ उससे गुनाह कराता है, और जब उसका दिल भर जाता है तो वो गर्दन से पकड़ता है किसी गाड़ी के टायर के नीचे। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, इन दिनों के अंदर नौजवान कसरत के साथ जो है वो गाड़ियों के नीचे, लेकिन अगर जमीन के ऊपर खुदा देता है कि इनकी कोई शफायत कर रहा है तो वो पुलिस से कहता है कि देख मेरा फलाना बेटा, मेरी फलानी बेटी इसके लिए शफायत कर रही है, और बात कहते हैं ये तो मेरी बेटी जिसके खून के अंदर छुपा हुआ है, आपकी शफायत। और अगर हम मुत्फिक होकर शफायत करेंगे तो आप कसरत के साथ जमीन के ऊपर एक इनकलाबी तब्दीली को मसीहत के अंदर देख पाएंगे। आज हमारी मोहब्बत जो है वक्त गुजरने के साथ चढ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन कहना चाहता हूँ, आए उठिए एक बात, आए जिम्मेदारी को निभाएं। हमें जिम्मेदारी दी गई, आज नहीं तो कल हमसे पूछा जाएगा
کہ میں نے پتر میری بیٹی میں نے تجھے یہ توڑا دیا تھا, میں نے یہ تیرے ذمہ یہ کام لگایا تھا. لیکن اگر ہم اس سمجھداری کے سبب سے قدر حاصل کریں گے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی سبب ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا شروع کرنا, بیٹھنا اور شفاعت کرنا, سچائی کے ساتھ شفاعت کرنا. اور شفاعت کے اندر اگر آپ کا دل شامل نہیں ہے, اگر آنسو شامل نہیں ہے, اگر چلانا شامل نہیں ہے, اگر رونا شامل نہیں ہے, اگر درد شامل نہیں ہے, تو کیسی شفاعت؟ یسوع لازر کے لیے رویا, اکثر کہا تو وہ دبا کے اندر ساری رات گزارا کرتا تھا. ایک اکیلا یسوع ہو رہا تھا پوری دنیا کے اندر. لیکن کہنا چاہتا ہوں اگر آج مسیح کٹھے ہوں, شفاعتی خدمت کے اندر اپنے آپ کو رکھے, شفاعت کریں, تو یقیناً آنے والے چند سالوں کے اندر آپ دنیا کے طریقے انقلابی تبدیلی کو دیکھ پائیں گے, اور آپ کی شفاعت کی سبب سے بہت سارے لوگ توبہ کر کے یسوع سے قربانی دے رہے ہیں. مجھے ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا تھا, اور دعا کرتے ہوئے اس نے ٹائم اور نوٹ کیا. اگلے 2 سال کے بعد اس بھائی کو خط ملا اور اس نے لکھا جس کے لیے وہ شفاعت کر رہا تھا. اس نے کہا کہ پچھلے دنوں کے اندر مجھے اپنی زندگی سے اس قدر نفرت ہوئی کہ میں اپنے چرچ کے اندر آیا, خادم سے توبہ کی, بپتسمہ لیا, میرا بھائی کا تو میں نجات پایا. ایک عورت بری داد کے اندر اکثر اوقات رات کے وقت وہ ہوٹلوں کے اندر ہوتی, اس کی ماں اس کی اس عادت سے بڑی پریشان تھی. خدا کے خادم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے خدا کے خادم سے کہ یہ والی حالت ہے میری بیٹی کی. خدا کے خادم نے کہا بہن میرے ساتھ مجھ کو ہم ابھی شفاعت کریں گے. دونوں خدا کا خادم اور بہن مجھ سے ہوئے, انہوں نے مل کر شفاعت کی. خادم نے دیکھا کہ وہ بیٹی اس برائی سے باز آتی ہے. چند دنوں کے بعد یہ بیٹی ایک ہوٹل کے اندر جب صبح اٹھتی ہے تو اسے اپنی زندگی سے, پرانی زندگی سے بڑی نفرت ہوتی ہے. اٹھتی ہے, ہوٹل سے باہر آتی ہے, سیدھا اپنے گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے, اور پھر ماں اور بیٹی دو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتا دوڑتے. یہ وقت ہے روح کو بچانے کا. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ شفاعتی دعا روح القدس موجود ہے, اور روح القدس اس طور پر, روح القدس کے شاذور دریا کے اندر اس طور پر جب آپ شفاعت کریں گے روح القدس کا بہاؤ اس طور پر بہے گا کہ پھر ایک بڑی تبدیلی ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور روح القدس اس بات کے لیے متحرک ہے, وہ ایمانداروں کی طرف دیکھ رہا ہے. خدا کوئی بھی اپنا کام آپ کی دعاؤں کے بغیر نہیں کرتا. زمین کے اوپر اسے روح کو بچانے کے لیے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے. آئیں ذرا اپنی پورا کریں اور خدا ان کی طرف کریں اور شفاعتی دعاؤں میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقت گزاریں. ٹارگٹ کریں ان روحوں کو جو آپ کے محلے کے اندر, آپ کے گھر کے اندر آس پاس ہیں, اور پھر دیکھیں ایک بڑی تبدیلی کا, ایک بڑی فصل کو آپ اپنی زندگی کو لگتا ہے. ہمیں جی اس کلام کو اپنے ساتھ رکھیے گا, رات کے پہلو میں اس کے اوپر سوچیے گا کہ بات کیا یہ میری ذمہ داری, کیا یہ میری رویا ہے, کیا یہ میری بلاہٹ ہے,
क्या तेरी मर्जी है कि मैं शफायत करूँ? नहीं अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें और बैठे उसको सुनी कर लगे। खुदा इस कलाम के सबब आपको बरकत दे कि आप एक वकील की तरह खुदा बाप की हज़ूरी में आए और गुनाहगार लोगों के लिए शफाअत करें। आपकी शफाअत बहुत सारे लोगों को हो जाएगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, ज़रा सोचें।